Hello everyone. So today we will discuss the numerical of Hebb network, which is also called an Hebbian network. I had previously also defined how it is working and what is the requirement of a Hebb network. A small example I can give it to you by defining uh, that a Hebbian network or a Hebbian rule says that we have to fire neuron again and again, by which the output which you want to produce it can produce. जैसे मैंने आपको पहले भी क्लास में एग्जांपल दिया था, द मूवी विच इज कॉल्ड योर दृश्यम मूवी, विच वाज द मूवी ऑफ एन अजय देवगन. और उस मूवी में उसने ये शो रिप्रेजेंट करा था कि ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर. उसने सबको जा जाके ये बात डिफाइन करी थी कि मैं वहां पर उस जगह पर नहीं था या उस जगह पर मैं प्रेजेंट था, जबकि वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था. एंड इट वाज ट्राइंग टू प्रिटेंड अबाउट दैट थिंग कि मैं तो वहां पर था ही नहीं या मैं तो वहां पर था. कैसे बार बार उसने उन बातों को उनको रेपिटेशन में करके बाकी सबको उसने सुनाया, यानी कि अगेन एंड अगेन उसने न्यूरॉन को फायर करा, उनके माइंड के न्यूरॉन्स को उसने फायर करा और उन्होंने उसको याद करवा दी बात कि ऑन दैट डे आई वाज प्रेजेंट देयर, नॉट देयर. Same as the concept of the Hebbian network. We are again and again firing the neuron for achieving my output value. Okay, beta. So starting over the Hebb network, if I talk about the Hebb rule, there is a Hebb rule in the Hebbian network. It can be used basically in pattern association, pattern categorization, or pattern classification. And also, there are a number of areas where we can classify it. So, before starting the numerical, a small flowchart of that by which we can follow the steps of this flowchart for calculating my numerical. It says that firstly initially we have to initialize the weights. जैसे कि आपको पता है कि न्यूरल नेटवर्क को अगर मुझे काम करना है तो मुझे वेट्स की वैल्यू पर काम करना ही पड़ेगा. Further, it says that for each S colon T, that means the source values as well as the target values, activate input units. आपको पहले input units को activate करना पड़ेगा, जो भी source values हैं उनके input values को लेना है. Then we have to calculate the output unit, जो उसकी target value है वो भी हमें देखनी है, उनको भी activate करना है. उसके बाद हम weights का updation करेंगे at every input, at every layer we have to update my weight value. उसके लिए फॉर्मूला क्या है? wi new is equal to wi old plus xi y. And similarly we have to update the value of the bias also, which is saying that b new is equals to b old plus xy. And it will follow the steps again and again till we achieve my all the sources values, all the targeted and all the sources value again and again will that. So we will move on to the numerical. For that part we'll see the numerical and then we will able to clear the concept of the Hebbian network or the Hebbian learning. So we are dealing with the AND gate. हम जो logic gate use कर रहे हैं, हम AND gate का logic gate use कर रहे हैं for defining the question. फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि वी हैव टू मेंशन ट्रुथ टेबल फॉर दैट गेट. तो ट्रुथ टेबल मुझे पता है, इसकी ट्रुथ टेबल क्या है? 1 1 माइनस 1 -1 माइनस 1 माइनस 1. और ये हम कौन से वैल्यूज पे काम कर रहे हैं? वी आर वर्किंग विद द बाइनरी वैल्यूज और वी आर वर्किंग विद द बाइपोलर वैल्यूज. Yes, we are working with the bipolar values. Bipolar means we are dealing with the 1 and -1 value, isn't it? Next step हमारा क्या होता है? We have to assume the value of the weights. हमें weights की value को assume करना होता है and generally we are assuming the weights value as 0. Initially हम 0 value से ही काम start करते हैं. तो it is defined here as W1 0, W2 0 and B is equals to 0. हमने initially weights को assume कर दिया है as a 0 value. ठीक है बेटा. इसके बाद हम क्या करेंगे? हम 1 by 1 अपने input values को उठाएंगे. सबसे पहले मैं उठाऊंगी अपने फर्स्ट इनपुट वैल्यू को, जो मेरी कौन सी है? 1 1 और 1. मैंने अपने फर्स्ट इनपुट वैल्यू को पिक करा, मैंने वहां मेंशन करा मेरा x1 क्या है? 1 है. x2 मेरा क्या है? 1 है. और बायस भी मेरा मैंने यहाँ पर क्या है? मेरा 1 है. अगर बायस की वैल्यू गिवन नहीं होती तो वी आर एज्यूमिंग जनरली एज ओनली 1 वैल्यू. ओके बेटा. एंड द टारगेट इन द क्वेश्चन एज इट इज गिवन, इट इज ऑल्सो द वैल्यू 1. ठीक. As from the flowchart, we have seen that now we have done the activation of the input values, we have done the activation of my target value. So say next we are moving on to the updation of the weights value. So for the updation, we know the formula. It says that wi new is equal to wi old plus xiy. यानी कि मैं बात करती हूँ w1 new is equal to w1 old plus x1 asterisk y. मुझे पता है मेरी ओल्ड वैल्यू वेट्स की क्या है? मेरी ओल्ड वैल्यू है वेट्स की जो मैंने एज्यूम करी है, इट इज कमिंग योर 0. Isn't it? मेरी x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? यहाँ पे 1 है, जो मैंने यहाँ टेबल से उठाई थी. जो मेरी x1 की वैल्यू ये है, फर्स्ट वैल्यू, इट इज योर 1. जब मैंने इसको पुट करा, मैं आई गॉट द आंसर एज हियर एज 1. यानी कि मेरा W1 न्यू क्या निकल कर आ गया? इट इज कमिंग टू बी योर वैल्यू 1. सिमिलरली हम निकालेंगे W2 न्यू. W2 न्यू इज W2 ओल्ड प्लस x2 एस्ट्रिक y. यानी कि मेरे पास इनिशियली मैंने ज्यूम करा है 0, जो मेरी ओल्ड वैल्यू है वेट्स की, प्लस 1 मेरा इनपुट वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर भी मेंशन करा था x2 का, और जो मेरे टेबल की बात करें तो टेबल मेरे पास यहाँ मेंशन है x2 की वैल्यू जो यहाँ 1 है.
जब मैंने पुट करा इस वैल्यूज को, मैंने आइडेंटिफाई किया आंसर, सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन को, इट इज कमिंग अगेन एज 1, यानी कि मेरा W2 न्यू क्या आ गया, वो भी मेरा आ गया 1। सिमिलरली विल कैलकुलेट द बी न्यू वैल्यू, यानी कि बेस की मैं नई वैल्यू को निकालूंगी, विच इज बी ओल्ड प्लस वाई। बेस की वैल्यू इनिशियल मेरी 0 एज्यूम थी, और मेरे पास जो उसका टारगेट वैल्यू है वो मेरा क्या है यहाँ पे, वो मेरा 1 है, जो मैंने आपको कहा है। टारगेट वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज बिन असाइंड इन द बी, इट इज अगेन द 1 वैल्यू जो मेरी यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर वे मेंशन है, मैंने आपको कहा अगर बेस क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो आपको 1 वहां पर मान के चलना है कि जो बेस की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है बेटा, तो इसका भी जो मेरा आउटपुट है वो निकल कर आ गया यहाँ पर आपका 1, यानी कि W1 न्यू भी 1 आ गया, W2 न्यू भी 1 आ गया, और B न्यू भी 1 आ गया। अब बेटा ध्यान से सुनिए, अभी हमने जो काम करा है वो हमने किसके लिए काम करा है, हमने फर्स्ट इनपुट के लिए काम करा है। ठीक है, अब हम यही प्रोसेस जो है वो सेकंड इनपुट के लिए काम करेंगे। ये जो मेरा सेकंड इनपुट है, सेम यही प्रोसेस मुझे उसके लिए भी अप्लाई करना है, लेकिन इसमें हम वेट्स की वैल्यू क्या यूज करेंगे, हम वेट्स की वैल्यू 0 नहीं यूज करेंगे। सिर्फ हमने जब फर्स्ट इनपुट के लिए काम किया था तब हमने वेट्स की वैल्यू को 0 एज्यूम किया था। अब मेरे पास नई वेट्स की वैल्यू निकल कर आ गई है, जो कि है 1 1 1। तो नेक्स्ट इनपुट के टाइम पर, जो मैं नेक्स्ट इनपुट के लिए अब आगे सॉल्व करूंगी क्वेश्चन को, उस टाइम जो मैं वेट्स की वैल्यू को यूज करूंगी वो मैं इन वेट्स की वैल्यू को यूज करूंगी, दैट मीन्स 1 1 एंड 1। ठीक है बेटा, तो फॉर फर्दर इट इज सेइंग दैट, अगर मैं बात करती हूँ चेंज इन वेट्स निकालने के लिए, फॉर द चेंज इन वेट्स फॉर्मूला इज डेल्टा W1 इज इक्वल टू x1 एस्ट्रिक y, यानी कि जो आपने यहाँ पर निकाला था बेटा x1 एस्ट्रिक y, वही सेम चीज यहाँ पर रिपीटेशन में लिखी हुई है। जो आपका ये 1 था, अगर बात करती हूँ 1 एस्ट्रिक 1 वो आपका 1 है, x2 एस्ट्रिक y वो आपका 1 है, जो आपका यहाँ पर आपने मेंशन किया था x2 एस्ट्रिक y, विच इज ऑल्सो योर 1 एस्ट्रिक 1, जो कि आपका 1 ही था। एंड सिमिलरली डेल्टा b इज इक्वल टू y, जो आपने यहाँ क्वेश्चन में अभी लिखा था जब सॉल्व करते हो y, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कमिंग योर हैज 1। तो यानी चेंज इन वेट्स वैल्यू भी मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, 1 1 एंड 1। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड इनपुट की वैल्यू को, यानी कि x1 x2 b, जो मेरा है 1 -1 एंड 1। बेस तो मेरा 1 है ही, और जो मेरे सेकंड इनपुट्स है वो क्या है, मेरा 1 है और -1 है, जिसका मेरा टारगेट वैल्यू क्या है, जिसका मेरा टारगेट वैल्यू है -1। मैं बात करती हूँ इस सेकंड इनपुट की, दिस इज माय सेकंड इनपुट 1 -1 एंड -1। अब मैं इसके लिए आइडेंटिफाई कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द सेकंड इनपुट वैल्यू। ठीक है बेटा, मुझे पता है मेरे पास वेट्स की वैल्यू क्या नहीं निकल कर आई थी, वो निकल के आई थी मेरे पास 1 1 एंड 1, यानी कि W1 भी 1, W2 भी 1 और बेस वैल्यू भी 1। मुझे पता है मेरा फॉर्मूला क्या है, W1 न्यू इज इक्वल टू WI ओल्ड प्लस X1Y या XIY। आप चाहें तो पहले चेंज इन वेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट मीन्स X1 एस्ट्रिक Y, X2 एस्ट्रिक Y और द ओनली Y। अगर मैं बात करती हूँ X1 एस्ट्रिक Y की, तो दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई -1, x1 की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पर, वो मुझे यहाँ पर 1 गिवन है। y की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पर, y की वैल्यू मेरे पास -1 है, जो मेरी टारगेट वैल्यू थी मैंने पुट करी, इसका मेरा आंसर आया निकल के चेंज इन वेट्स की वैल्यू दैट इज -1। सिमिलरली x2 एस्ट्रिक y अगर मैं निकालती हूँ, x2 की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ -1 गिवन है। टारगेट की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास यहाँ -1 गिवन है, मैंने पुट करा, आई गॉट द वैल्यू ओनली एज 1। सिमिलरली फॉर द बेस वैल्यू मैं बात करती हूँ, मेरी टारगेट वैल्यू क्या है, मेरी टारगेट वैल्यू है -1, जो कि मेरे यहाँ पर -1 ही है। ठीक है बेटा, अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या है, W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड प्लस x एस्ट्रिक y, या उसको आप शॉर्ट फॉर्म में हमने, क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं ऊपर ही, वी कैन मेंशन हियर दैट डेल्टा W1, चाहे तो आप यहाँ डेल्टा W1 लिखिए, चाहे आप लिखिए XIY या X1Y। ठीक है बेटा, W1 ओल्ड मुझे पता है मेरे पास क्या वैल्यू जो मेरे नहीं निकल कर आई थी, विच इज 1 1 एंड 1, तो मुझे पता है W1 ओल्ड इज माई 1। चेंज इन वेट्स वैल्यू दैट मीन्स डेल्टा W1 इट इज कमिंग योर -1, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया -1। जब मैंने सॉल्व करा इसको तो मेरा आंसर निकल के आया यहाँ पे 0। सिमिलरली W2 न्यू विच इज इक्वल टू W2 ओल्ड प्लस डेल्टा W2, यानी कि W2 ओल्ड क्या है मेरे पास, वो मेरे पास है 1, मेरा डेल्टा W2 क्या निकल के आया 1, और मैंने जब पुट करा इन दोनों को तो मेरे पास आंसर निकल कर आया यहाँ पे 2। सिमिलरली रिगार्डिंग द बेस वैल्यू B न्यू इज इक्वल टू B ओल्ड प्लस डेल्टा B ओल्ड मेरे पास 1 था, चेंज इन जो मेरे पास बेस वैल्यू निकल गई मेरे पास -1, विच इज कंक्लूडेड एट योर 0। ठीक है बेटा, तो जब मैंने सेकंड इनपुट पे काम करा तो मेरे नए वेट्स जो निकल कर आए वो निकल के आए मेरे 0 2 एंड 0, इजंट इट। अब मैं यही सेम प्रोसेस जो है वो अप्लाई करूंगी अपने थर्ड इनपुट पे। जो मेरा थर्ड इनपुट है विच इज योर -1 -1 1 एंड -1, दिस इज योर -1 1 एंड -1। मैं वही प्रोसेस इस पे अप्लाई करूंगी बाय यूजिंग जो मेरे नए वेट्स हैं, दैट मीन्स 0 2 0।
सिमिलरली जो मेरा आंसर इससे निकल कर आएगा वो मैं यूज करूंगी नेक्स्ट फोर्थ इनपुट के लिए, मैं यहाँ पुट करूंगी, अपने आंसर को निकालूंगी। ठीक है बेटा, तो इसी को हमने समराइज करा है इन अ टेबल, जो टेबल में आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं बात करती हूँ, मेरा फर्स्ट जो निकल के आया था वेट्स की वैल्यू निकल के आई थी 1 1 एंड 1, ये मेरी फर्स्ट की निकल कर आई थी फर्स्ट इनपुट से। सेकंड इनपुट से निकल के आई थी मेरी 0 2 एंड 0। ठीक है बेटा, सेम वही प्रोसेस मैंने थर्ड इनपुट के लिए अप्लाई करा, दैट मीन्स -1 एंड 1, ये मेरा थर्ड इनपुट था, तो मेरी वैल्यू निकल कर आई यहाँ पे 1 1 एंड -1। ठीक है बेटा, ऐसे ही मैंने यही वैल्यू को यूज करा फोर्थ इनपुट के लिए, यानी कि आपको पता है थर्ड इनपुट की जो वैल्यू थी, जो मेरी थर्ड वैल्यू निकल कर आई थी मेरी वेट्स की वैल्यू, उसको मैं यूज करूंगी फोर्थ वाले के लिए, दैट मीन्स -1 -1, टारगेट वैल्यू इज -1, इजंट इट? तो जब मैंने उसके लिए निकाला तो मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आया 2 2 एंड -2, ये मेरी फाइनल वेट्स की वैल्यू निकल कर आई बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? आई डू थिंक इट्स अ सिंपल कांसेप्ट, बस ये ध्यान रखिए बेटा, इनिशियली आपको 0 एज्यूम करना है वेट्स की वैल्यू को, उसके बाद जो भी वेट्स की वैल्यू आपकी नई नई निकलती आ रही है, एट एवरी इनपुट वैल्यू यू हैव टू यूज दोज वैल्यूज ओनली, इजंट इट? जो भी वेट्स की नई वैल्यू निकल कर आ रही है, उन्हीं नई वेट्स की वैल्यू को ही आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब क्योंकि मुझे हेबियन रूल में उसको यूज करना है, फॉर दैट पार्ट आल्सो आई हैव टू आइडेंटिफाई द सेपरेशन लाइन, आई हैव टू आइडेंटिफाई द डिसीजन बाउंड्री लाइन, जो कंडीशन को मेरी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला इज x2 इज इक्वल टू माइनस W1 W2 x1 माइनस b अपॉन W2, ये मेरा फॉर्मूला होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इजंट इट? मेरी वेट्स की वैल्यू क्या है, मेरी वेट्स की वैल्यू W1 की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई थी, मेरी निकल के आई यहाँ पे 2, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2। W2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास 2 है, तो यानी कि -2/2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा -1, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ -x1, इजंट इट? अब मैं बात करती हूँ इधर इस तरफ की बात की बेटा, जो मेरी b की वैल्यू है, b की वैल्यू मेरी क्या है, b की वैल्यू भी मेरी यहाँ पर है -2, ये मेरी b की वैल्यू है -2, मैंने पुट करा। W2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो भी 2 है, तो क्या मेरा बन जाएगा यहाँ पे +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ जाएगी -x1 + 1, दिस विल बी माई इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब जब इस इक्वेशन ऑफ लाइन को मैंने ग्राफ में प्लॉट करा, आप x2 और x1 की वैल्यू कोई भी वैल्यू एज्यूम करिए, उन वैल्यूज को पुट करिए, पुट करने के बाद आप कोऑर्डिनेट्स वैल्यू को जब आप प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद आपके पास ये लाइन निकल कर आएगी, और मुझे डिसीजन लाइन ऐसी चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ, मैंने कहा न्यूरल नेटवर्क में मुझे आउटपुट तो गिवन है ही, क्या वो मेरे आउटपुट को सेटिस्फाई कर रही है, व्हाट इज माय आउटपुट वैल्यू, दिस इज माय आउटपुट, इजंट इट? 1 -1 -1 -1, यानी कि 3 नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, यानी कि मुझे ऐसी लाइन मिलनी चाहिए जो पॉजिटिव को अलग कर दे और 3 नेगेटिव को अलग कर दे। तो हम चेक करते हैं कि जो लाइन हमारी बन के आई वो सही बनकर आई है या नहीं बनकर आई है। 1 1 पर मेरा प्लस आएगा, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, 1 -1 पे मेरा नेगेटिव रिस्पॉन्स था, -1 पे मेरा नेगेटिव रिस्पॉन्स था, एंड अगेन -1 1 पे मेरा नेगेटिव रिस्पॉन्स था, और जो मेरी लाइन निकल के आई डिसीजन लाइन, इट इज कमिंग लाइक दैट, सो दैट मीन्स इट इज डिवाइडिंग द कोऑर्डिनेट्स, इनके प्लस आपका एक तरफ आ गया पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो 3 है वो आपके एक तरफ आ गए हैं। तो दैट मीन्स जो आपकी ये जो वेट्स की वैल्यू निकल कर आई है वो बिल्कुल सही वैल्यू निकल कर आई है, जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ऐसा हो जाता है कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली विल स्टार्ट एज्यूमिंग अगेन द न्यू वैल्यूज फॉर द वेट्स वैल्यू। गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर से उसी प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करूंगी। मैं ये जो मेरा, जब हम बात करते हैं बेटा, हमने जब काम करा है इस वैल्यू पे, जो मेरी ये जो टेबल थी, जब मैंने इस वैल्यू पे मैंने काम करा है, दिस इज कॉल्ड योर वन एपॉक, इसके लिए मैंने एक फर्स्ट एपॉक पर ही काम करा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मेरा आंसर सही नहीं आता तो मैं क्या करूंगी बेटा, हम फिर से उस प्रोसेस को फिर से यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग सेकंड एपॉक, यानी जो मेरी लास्ट वेट्स की निकल के आई थी 2 2 एंड -2, जो भी वैल्यू आपके निकल कर आई 2 2, अब हम फिर से जब फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे और हम यहाँ से काम करना शुरू कर देंगे उन वेट्स की वैल्यू को यूज करके, और तब तक हम ये प्रोसेस चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे पास एक्यूरेट इक्वेशन ऑफ लाइन निकल कर नहीं आ जाती। ठीक है बेटा, फाइनली वी कैन रिप्रेजेंट दिस values in terms of your figure, representing the weights value x1 and x2 with the weights value of 2 2 and the base value as -2. Thank you so much.